नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। Now before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that new Unacademy batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 aspirants are starting from 17th of March. Hurry enroll. 1 year mission victory batch, that is both in English as well as in Hindi language, starting from 17th of March with top Unacademy educators. Also expedition batch is also starting, which is in English language. Hindi batches are also there. Lakshya UPSC CSE GS की पूर्ण तैयारी, 1 year batch, and also 2 year batches for UPSC CSE 2023. So hurry, get your subscription now. Click on the link in the description box and download the Unacademy app. Choose the course as UPSC CSE. When prompted, you just have to subscribe for UPSC CSE course. You can also get the plus subscription and also the iconic subscription. Get your subscription now by clicking on the prompted button of green color get subscription. You just have to type in the code ARPITA10 ARPITA10 and get 10% extra off on your subscription. Now today we'll be talking about NBFCs in India, the challenges and solutions. Now the non-banking financial companies, also known as the NBFCs, are very much in news these days, especially after the COVID-19 pandemic happened. Now what is NBFC and NBFC है क्या? देखिए, it is a company registered under the Companies Act 1956, engaged in business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by government or local authority, or other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, insurance, business, chit business, but does not include any institution whose principal business is that of agricultural activity, industrial activity, purchase or sale of any goods, or providing any service, and sale, purchase, construction of immovable property. देखिए, इसको अगर इजी भाषा में भी समझा जाए तो एनबीएफसी जो है वह कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है 1956। बैंक से एनबीएफसी इस तरीके से डिफर करती है कि बैंक्स के अंदर आपका जो कासा है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वो होता है, लेकिन एनबीएफसीज में एफडी वाला जो प्रॉस्पेक्ट है फिक्स डिपॉजिट का, वो आपको भले ही कुछ में देखने को मिल जाए, लेकिन कासा का जो कंसेप्ट है, करंट अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट का जो कंसेप्ट है, वो नहीं देखने को मिलता है। कमर्शियल पेपर इशू करती है एनबीएफसी, और जो भी लेना चाहते हैं उस कमर्शियल पेपर को, वो उसे खरीदते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद उसे वापस करते हैं, तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा जो है मिल जाता है। A non-banking institution which is a company and has a principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contributions or in any other manner is also a NBFC. तो देखते हैं डिफरेंस क्या है NBFC का। जैसे मैंने आपको बताया, NBFC जो है डिपॉजिट जो होते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। NBFC do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. ये भी इसका एक मेजर इंपॉर्टेंस है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज, जैसा कि बैंक के केस में होता है। अब बैंक्स जो हैं विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दी एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय मल्टीपल रेगुलेटर्स, जैसे कि आईआरडीए हो गया, आपका सेबी हो गया। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको स्टेट गवर्नमेंट कई बार आपको रेगुलेट करती है। एंड द नॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर लैंडिंग डज नॉट अप्लाई टू एनबीएफसी। प्लस जो सीआरआर होता है जैसे बैंक में एप्लीकेबल होता है, वो एनबीएफसी में नहीं होता। सो द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू एनबीएफसी। ना देखते हैं एनबीएफसी के कुछ एग्जाम्पल, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं एनबीएफसी, वो ज़्यादा इसलिए प्रेवलेंट हुआ हाल ही के कुछ सालों में कि हम देखते हैं कि बैंक जो हैं वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं, लेकिन एनबीएफसी कई ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बैंक भी नहीं पहुँच पाए। उसकी वजह से एनबीएफसी का जो प्रेवलेंस था वो ज़्यादा बढ़ा और लोग कहीं ना कहीं बैंक से भी ज़्यादा एनबीएफसी के ऊपर भरोसा रखने लगे।
These are the examples of the NBFCs. The first one is the Power Finance Corporation Limited. It was founded in 1986 and is a Navratna status company. It provides financial assistance to different power projects in the country. It supports organization involved in power generation, transmission and distribution. देखिए ये जो सब पॉइंट्स हैं दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी स्टेट पीसीएस एग्जाम एंड वन डे एग्जाम जहाँ पे फैक्चुअल डेटा जो है वो पूछा जाता है. Shriram Transport Finance Company Limited, it was founded in 1979 and has been offering funding services for light duty trucks, heavy duty trucks, mini trucks, passenger vehicles, construction vehicles and farm equipments. तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को आप देखेंगे कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा उनका वर्किंग है, उनका ज़्यादा ऑपरेशन है. Similarly, Bajaj Finance Limited, it was founded in 2007 and it is one of the most prominent NBFCs. It offers loans to doctor for career enhancement, home loans, gold loans, individual loans, business and entrepreneur loans. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस कंपनी है. उसके बाद हम देखते हैं MNMFSL. इट ऑफर्स इंश्योरेंस सर्विसेज एंड रूरल हाउसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड एडवांसेज, vehicle advances, corporate advances, home credit and working capital advances. And the last one, the Tata Capital Financial Services Limited. It offers commercial finance, infrastructure finance, wealth management, consumer loans and distribution and marketing of Tata Cards. अब इनका जो ऑपरेशन है वो टाटा कार्ड्स पे होता है. अब हम देखते हैं कि ये तो रही NBFC की डेफिनेशन एंड ये बैंक से क्यों अलग है और इसके कुछ एग्जांपल्स. लेकिन अब जो क्राइसिस है NBFC का वो क्या है. देखिए क्राइसिस को समझने के लिए NBFC की वर्किंग को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो NBFCs बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स. या तो NBFC कभी भी डिपॉजिटर की साइड से मनी नहीं एक्यूमुलेट कर सकती जैसे कि बैंक्स कर सकते हैं. आप एक नॉर्मल बैंक में देखते हैं कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं, वो अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में, डिपॉजिट करते हैं और कोई लोन लेने जाता है बैंक से और बैंक को वो फिर एक इंटरेस्ट रेट पे बाद में पे करेगा मनी. तो ये जो विड्रॉल और डिपॉजिट वाली जो साइकिल है बैंक्स में एप्लीकेबल है, लेकिन NBFCs में ऐसा नहीं होता इन द मेजॉरिटी. NBFC का जो पैसा है वो किसी डिपॉजिटर से नहीं बल्कि वो या तो वो खुद बैंक से लेते हैं या वो अपने कमर्शियल पेपर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल किसी NBFC ने 1000 रुपीज़ का कमर्शियल पेपर बनाया, वो उस 1000 रुपये के कमर्शियल पेपर को 930 रुपीज़ में या 950 रुपीज़ में किसी भी लेंडर को जो कि चाहता है उस कमर्शियल पेपर को ख़रीदना उसे बेच देंगे, उसे सेल कर देंगे और बोलेंगे कि 6 मंथ्स लेटर या 10 मंथ्स लेटर यही कमर्शियल पेपर आप हमें वापस कर देना और आपको हम 1000 रुपीज़ दे देंगे. इससे होता है ये जो बीच का जो इंटरेस्ट है, यानी कि अगर कमर्शियल पेपर 930 का बिका तो 70 रुपीज़ का जो पैसा है वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो मिल जाएगी उस इंसान को जिसने वो पेपर लिया. दिस मनी इज़ देन गिवन एज लोन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, रिटेल कस्टमर्स एंड सो ऑन एज आई टोल्ड यू. लेकिन जब भी NBFCs के अंदर लिक्विडिटी का क्रंच आएगा, यानी कि पीछे से ही पैसा नहीं है उनके पास, बैंक की साइड से तो बैंक पैसा देने से मना कर दे या फिर उनके जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो म्यूचुअल फंड वालों को दे ही ना पाएँ टू रेज मनी, तब NBFC का क्राइसिस आएगा. बैंक्स के केस में क्या है, बैंक्स किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट कर लेते हैं. आप समझ सकते हैं एक तराजू है, जो लिब्रा स्केल होता है, जो तराजू है, उस पर बैंक्स एक तरफ डिपॉजिटर है, एक तरफ वो लोग हैं जो कि लोन के लिए आते हैं, जिनकी लोन की डिमांड है. वो इन दोनों को रेगुलेट करके इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं. लेकिन NBFC में इसको बैलेंस आउट करना डिपॉजिटर साइड को बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ डिपॉजिटर होते नहीं. वो केवल बैंक से या तो डायरेक्टली पैसे उठाएंगे NBFC या फिर वो म्यूचुअल फंड्स में अपने जो कमर्शियल पेपर हैं उनको सेल करके रेज़ करेंगे पैसे को. अगर पैसा ही रेज़ नहीं हुआ, उनके पास पैसा ही नहीं होगा, then it means that no money to lend, and if there is no money to lend that will reduce the credit inflow. अगर NBFCs के पास पैसा ही नहीं होगा और पैसा नहीं होगा तो वो किसी को वो भी नहीं दे पाएंगे लोन, और अगर लोन नहीं दे पाएंगे तो लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा NBFCs के थ्रू. और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डाउन मारना शुरू करेगी. इट विल हिट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड उससे फिर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपनी जो पेमेंट है उस पर डिफ़ॉल्टर्स बनते जाएंगे और लोन्स पे जो है डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा. और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी और इसको ही बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच इन दी NBFCs. सो दैट मीन्स दैट NBFC मॉडल इज क्रिपल्ड, रेजेज शॉर्ट टर्म फंड्स विच आर देन लेंट आउट एज लॉन्ग टर्म लोन्स. अब इसको भी समझना चाहिए. देखिए मान लीजिए NBFC ने अपने पैसे को इकट्ठा किया, दैट दे रेज्ड मनी,
बाय सेलिंग 6 months ऑफ डेट पेपर। उन्होंने डेट पेपर 6 महीने के डेट पेपर निकाले और उन्हें सोल्ड आउट कर दिया मार्केट में। एंड ऑन लैंड दिस एज अ कार लोन विद अ टेन्योर ऑफ 5 साल, और इस पर 5 साल का जो कार लोन का जो टेन्योर है उसे अटैच कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि 5 साल में हर 6 महीने के अंदर इन्हें अपने डेट पेपर को रिन्यू करना होगा। अब ऐसा तब तो अच्छा होगा जब लेने वाला जो इंसान है, जो सामने लेंडर आया है, वो आपको पूरा आपका पैसा 5 साल के पीरियड में 6 महीने के अगर आप डिवाइड इसको कर लेते हैं डिवीजन में, हर 6 महीने में आपका जब रिन्यू हो रहा है जो डेट पेपर है उस टाइम आपको पैसा मिलता रहे। लेकिन अगर बीच में कहीं भी पैसे देने वाले इंसान ने डिफ़ॉल्टिंग करी तो ऐसे समय में जो साइकिल है वो टूट जाएगी और एनबीएफसी क्राइसिस में जाने के खतरे में पड़ सकती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब अच्छा समय रहेगा, जब गुड टाइम्स रहेंगे, जब इकोनॉमी बूम पे है, तो ये स्मूथली हर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 5 साल का जो टर्म है, जो स्लॉट है, उसमें हर 6 महीने के अंदर रिन्यूअल हो सकता है डेट पेपर्स का। लेकिन अगर किसी तरीके से, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि लोगों के पास जो था उन्होंने सारा अपना जो मनी था वो एक्यूमुलेट कर दिया था बैंक्स में, या कोई भी इस तरीके के अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो, चाहे कोई वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस ही क्यों ना हो, ऐसे सिनेरियो के अंदर टफ टाइम्स में वो साइकिल टूट जाती है और एनबीएफसी सीधा खतरे में जाती हैं। दिस लेड टू फियर अमंग बैंक्स। अब अगर एनबीएफसी खतरे में आएंगी तो बैंक्स वाले या जो म्यूचुअल फंड्स में एंटिटीज़ हैं उनको भी डर लगेगा एनबीएफसीज को पैसा देने में या उनके कमर्शियल पेपर्स लेकर पैसा उन्हें देने में, कि अगर पीछे से ही वो लोग जो है डिफ़ॉल्टिंग कर रहे हैं तो एनबीएफसी भी डिफ़ॉल्ट करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा लोगों के द्वारा ही आता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो एनबीएफसी है उसका क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। एनबीएफसी का क्राइसिस डीमोनेटाइजेशन के बाद से हम देखते हैं काफ़ी बड़ा है, और ये जो क्राइसिस है इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मोरेटोरियम्स भी जो हैं वो लगाए हैं। लेकिन जैसे इकनॉमी के अंदर ग्रोथ हो या डिक्लाइन हो वो बहुत स्लो प्रोसेस दिखता है, लेकिन ग्रीन शूट्स कहीं ना कहीं दिखते हैं। इसी तरीके से एनबीएफसी का जो क्राइसिस है उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि ये भी ठीक होगा। नो, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू कंसिडर फॉर दिस क्राइसिस? देखिए, पहला है क्वालिटी फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई, that RBI should initiate conversations with the senior bankers and provide assurances so that banks can start feeling more confident of funding NBFCs। इससे होगा ये कि जो बैंक हैं जो फील नहीं कर रहे हैं अच्छा एनबीएफसीज को लेकर, अगर जब तक वो ही एनबीएफसीज को पैसा नहीं देंगे तो जब तक एनबीएफसी के हाथ में जो मनी लेंडिंग पावर है वो नहीं आ सकती। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ मर्जर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। अब ये इसकी बात आरबीआई ने करी है और ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ भी है। हाल ही के कुछ 15-20 डेज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टाइम्स हो या फिर इकोनॉमिक जो चैनल्स हैं, फाइनेंशियल या बिजनेस चैनल्स हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि मर्जर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज, कि गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर अ मर्जर ऑफ एनबीएफसीज इनटू बैंक्स विद अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस टू एग्जेम्प्ट एग्जिस्टिंग एनबीएफसी बैलेंस शीट्स फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ CRR, SLR एंड PLR रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंक। अब आप समझिए, बैंक के अंदर CRR और SLR की जैसे जो यूज़ था उसी का यूज़ एनबीएफसी में भी हो सकता है, लेकिन एनबीएफसी के अंदर CRR का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं होता है, जो कि हो अगर हो तो एनबीएफसीज और बैंक एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। The third point is raising entry capital norms. Since regulating over 10,000 NBFCs is a very difficult task, increase in threshold entry level of NBFCs and HFCs can be considered by raising the minimum capital requirements। तो इससे होगा ये, जैसे कि अब देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंक्स का और बैंक्स मर्ज हो रहे हैं, उसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं कि अगर बहुत सारी जो छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं उनको अगर हम मर्ज करते हैं, नॉट जस्ट इन बैंक्स, लेकिन वो इतनी सारी जो है उनको अगर एक यूनिट बनाया जाए तो उनको रेगुलेट करने का टास्क भी आसान हो सकता है। देन it is securitization of mortgage loans. Securitization provides much needed liquidity to the balance sheet. According to IMF, securitization helps free up capital and that allows banks to extend new credit to the economy. It can be an alternative source of long term funding। तो इससे होगा ये कि केवल शॉर्ट टर्म फंडिंग पे बात नहीं होगी बल्कि लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए भी एनबीएफसीज को हम और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। नाउ द कवर्ड बॉन्ड्स। Covered bonds are debt securities issued by a financial institution and backed by a high rated pool of assets. In the event the financial institution becomes insolvent, the bond is covered. It is more efficient and low cost source of
फंड देन इनसिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए कई बार हम देखते हैं कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होते, और कहीं भी अगर अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो होता है जहाँ पे एनबीएफसीज का जैसे एग्जांपल हमने दिया, तो वो एसेट उनकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम कवर्ड बॉन्ड्स का यूज़ करें, दैट इज़ मोर सिक्योर। नाउ डेवलपिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, टेक अप्रोप्रिएट मेजर टुवर्ड्स दिस। ये तो ईजी है कि आपको कॉर्पोरेट मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट है, उसको डेवलप करना चाहिए। प्लस हम अगर हम देखें, क्रिएट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF की स्थापना होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फंड्स कैन बी चैनलाइज टू NBFCs थ्रू AIF। and also Unified Regulatory Agency. The Financial Sector Legislative Reforms Commission 2011 had proposed a unified regulatory agency of NBFCs, equity and bond markets, insurance, pensions, mutual fund, etc. देखिए NBFCs के ऊपर दो RBI बैंक्स को रेगुलेट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि नरसिम्हन कमेटी में भी या पीजे नायक कमेटी में भी इस बारे में बात हुई कि एक ऑटोनॉमस, एक सब ऑटोनॉमस रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए अंडर RBI टू मॉनिटर बैंक्स। इसी तरीके से NBFC के ऊपर भी एक सब ऑटोनॉमस रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो NBFC, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इनके ऊपर भी रेगुलेशन दे। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो NBFCs के ऊपर कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, इसलिए RBI मोरेटोरियम तो देता है या कई बार मदद के लिए जो हैं इस तरीके के सोल्यूशंस बोले जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी सब ऑटोनॉमस रेगुलेटरी अथॉरिटी वो ग्राउंड रियलिटी पे दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई नई कमेटी फॉर्म नहीं होती है। ऑल्सो क्रिएट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या AIF के नाम से भी जिसे वो जाना जाता है, ये इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कवर्ड बॉन्ड्स। कवर्ड बॉन्ड्स हैं, लेकिन AIF जो है एक तरीके का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि बचा के रख सकता है NBFC को फ्रॉम द क्राइसिस सिचुएशन। तो आज हमने पढ़ा कि NBFCs क्या हैं, ये बैंक से अलग क्यों हैं, क्राइसिस क्या है NBFCs का, और ये कैसे एक लिक्विडिटी क्रंच के रूप में सामने आता है, और हमने देखे कि क्या सोल्यूशंस हैं दैट वी कैन कंसिडर फॉर helping out the NBFCs, also known as the non-banking financial companies. Thank you.